Now, example number 29. First, y is equal to e raised to minus x. Now, recalling again the all formulas, d dx of a raised to x is a raised to x into log a base e. Derivative of e raised to x is e raised to x itself, and derivative of log x इज इक्वल टू 1/x. नेचुरल लॉग है, बेस ई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो ये तीन फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी. नाउ दिस इज गिवन y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ई रेज टू एक्स ही चाहिए. इसमें x की जगह पे क्या है, माइनस एक्स. दैट इज ई रेज टू ब्रैकेट. वी हैव टू अप्लाई चेन रूल. So differentiating this with respect to x, right? So differentiating with respect to x, right? So dy by dx is equal to d dx of e raised to minus x हो जाएगा. Now applying chain rule, derivative of e raised to bracket. Derivative of e raised to bracket is e raised to bracket. So e raised to bracket as it is, and derivative of bracket is minus x. So minus x का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव -1. So minus e raised to minus x. So this is your answer, right? Your second question is given in this example is y is equal to sin log x, where x is greater than 0, where x is greater than 0. This is the condition given, right? So again differentiating with respect to x, right? So differentiating with respect to x, right? क्या हो गया, y is equal to sin ब्रैकेट हो गया, राइट? तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव लॉग ब्रैकेट, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल लॉग एक्स का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, राइट? साइन ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट, ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव लेना है हमें. नाउ दिस इज कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x. सो दिस इज योर आंसर. dy by dx is equal to cos log x into 1/x. पेज टर्न कर लिया, राइट? अब थर्ड इसमें दिया है y is equal to cos inverse e raised to x. Cos inverse e raised to x. So you have formula for cos inverse, d dx of cos inverse x. You know, answer of this derivative of cos inverse x is -1 upon under root 1 minus x square, right? So क्या है, ये इन्वर्स फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, और चेन रूल भी अप्लाई करना है, राइट? तो ये सब आपको ख्याल में रखना है. तो पहले कॉस इन्वर्स ब्रैकेट चेन रूल अप्लाई करते हैं. फर्स्ट फंक्शन कॉस इन्वर्स ब्रैकेट. कॉस इनवर्स ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, राइट? सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equal to cos inverse bracket डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट पे क्या है, e raised to x होल स्क्वायर, एंड अप्लाइंग चेन रूल डी डी एक्स ऑफ e raised to x. समझ में आई ना बात? कॉस इनवर्स ब्रैकेट, राइट? तो क्या होगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट का, -1 अपॉन 1 माइनस x इज ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज e raised to x, एंड डेरिवेटिव ऑफ e raised to x अगेन, राइट? Now you know derivative of e raised to x is e raised to x itself. So क्या आंसर आएगा, तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा माइनस e raised to x होल अपॉन अंडर रूट
1 minus e raised to x whole square, that is multiplying this power e raised to twice x, that is your answer. इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है y इज इक्वल टू e raised to cos x, e raised to cos x दिया है. अगेन दिखाई देता है ना. चलो, तो y इज इक्वल टू e raised to cos x. So e raised to bracket derivative of e raised to x is e raised to x, right? So applying this formula, but this is chain rule because this is not x. So क्या होगा? Differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x. Derivative of this dy by dx is equal to e raised to bracket is e raised to bracket into derivative of bracket again. So derivative bracket again, that is cos x. जो आंसर है वो e रेज टू cos x. आपको पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, राइट? सो आंसर विल बी माइनस साइन x इंटू e रेज टू cos x हो गया. आंसर e रेज टू cos x हो गया. इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको दिया है y इज इक्वल टू e रेज टू x होल अपॉन साइन x. तो जो फंक्शन दिया है y e रेज टू x अपॉन साइन x, वो क्या कौन सा फॉर्म में है? u अपॉन v. और यू नो डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज, राइट? ये क्वेश्चन रूल है, उसका डेरिवेटिव आपको पता है v स्क्वायर, v एज इट इज, दैट इज डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज du by dx minus numerator as it is and derivative of the denominator that is dv by dx, right? So applying this rule here, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx, dy by dx is equal to v square, that is denominator square means sin x whole square, denominator as it is, v as it is, that is denominator as it is, sin x, derivative of u, that is numerator, that is d by dx of e raised to x minus u as it is, that is numerator as it is, e raised to x, and derivative of denominator, that is sin x. ये आपका रूल्स के हिसाब से हो गया डेरिवेटिव, राइट? अब इसका आंसर लिखते हैं. तो दिस इज साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. तो ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to e raised to sin inverse x, y is equal to e raised to sin inverse x. Again, given function is of the form e raised to x, and you know derivative of e raised to x, t dx of e raised to x is e raised to x, but instead of x it's given sin inverse x. So applying chain rule. So therefore differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of e raised to bracket, e raised to bracket is e raised to bracket itself, right? So this is e raised to sin inverse x, and derivative bracket, that is d dx of sin inverse x. So e raised to sin inverse x, and derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. याद है ना ये फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स था, तो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगेन दैट इज ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स, एंड डेरिवेटिव दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया है y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स. देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, राइट? कंपोजिट फंक्शन है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, इनवर्स फंक्शन भी है और साइन फंक्शन भी है। सो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आपका सब टेस्ट होगा। पहले साइन ब्रैकेट, राइट, साइन ब्रैकेट। तो साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको पता है, क्या होगा, कॉस ब्रैकेट। सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x dy by dx इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ब्रैकेट, ब्रैकेट इज टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ अप्लाइंग चेन रूल। सो टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, पता चला। हाँ, क्या किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ साइन ब्रैकेट इज कॉस ब्रैकेट एंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट अगेन, राइट। सो अब क्या होगा, दिस इज कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या आता है, पता है ना, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 plus x square, that is derivative of tan inverse bracket is 1 upon 1 plus bracket square, right? So here this is the bracket. So what is our answer? Derivative of this is 1 upon 1 plus bracket square. Bracket में क्या है, e raised to minus x. So by chain rule you have to multiply by d dx of e raised to माइनस एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स। समझ में आया ना, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ब्रैकेट इज 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। सो ब्रैकेट इज ई रेज टू माइनस एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ब्रैकेट इज 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ द ई रेज टू माइनस एक्स अगेन, राइट। नाउ दिस इज cos 10 inverse e raised to minus x, this is 1 upon 1 plus e raised to minus twice x and derivative of e raised to minus x, derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into d dx of minus x, right। चेन रूल अप्लाई करते हैं वापस, तो क्या हो गया, दिस इज cos 10 inverse e raised to minus x into 1 upon 1 plus e raised to minus twice x, e raised to minus x और minus x का डेरिवेटिव -1। सो फाइनल आंसर जो है वो आपको ऐसा मिलेगा, माइनस, इसको आगे लिख देते हैं, e raised to minus x into cos 10 इनवर्स e raised to minus x whole upon 1 plus e raised to minus twice x। तो ये जो एग्जाम्पल था इसमें आपने देखा कि साइन फंक्शन था, इनवर्स फंक्शन भी था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था, और उनको साथ में क्या किया हमने, चेन रूल अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकला। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5, given that y is equal to log cos e raised to x, right। अभी तो आपके लिए इजी हो गया, राइट। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो लॉग ब्रैकेट का जो आंसर है क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, नेचुरल लॉग होना चाहिए, बेस ई होना चाहिए, नहीं लिखा है दैट मीन्स ई है, तो उसका आंसर आता है 1 अपॉन एक्स। सो दिस इज योर फॉर्मूला, आपके पास ये फॉर्मूला है, राइट। तो इसका जो डेरिवेटिव निकालेगा क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट दैट इज 1 अपॉन कॉस e raised to x होगा, right। again derivative of the cos e raised to x, that is d dx of cos e raised to x होगा, right। so this is 1 upon cos
e raised to x. Derivative of cos bracket is minus sine bracket. Derivative of cos bracket is minus sine bracket. Again derivative of e raised to x. So derivative of e raised to x होगा, दिखाई देता है ना आपको? Okay. So now this is minus sine upon cos, sine e raised to x upon cos e raised to x, that is minus 10 e raised to x होगा, और derivative of e raised to x is e raised to x. So आपका आंसर क्या आ गया? माइनस 10 e raised to x इंटू e raised to x. अब एक बात याद रखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. सी y इज इक्वल टू, दिस इज गिवन log cos x, right? So y is equal to log cos x is given, right? तो आंसर क्या आया? माइनस 10 ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स. अब ये तो चेन रूल था इसलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपन ब्रैकेट दैट इज कॉस हो गया, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन, तो क्या आता है आंसर? माइनस 10x आता है, राइट? तो यदि आपको पता है कि log cos x है, ये log cos x है, इसका आंसर क्या आता है? माइनस 10x. तो इसका आंसर देखो भी माइनस 10x. सो माइनस 10x एंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट इज अगेन e raised to x. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log cos x, that is d dx of log cos x is minus 10x, राइट? सो आपको ये शॉर्टकट के लिए काम में आएगी फॉर्मूला. डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स इज माइनस 10x. सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. तो आंसर क्या आएगा? कॉट एक्स, राइट? तो आपको ये दो फॉर्मूला भी याद रखना है. अभी आपकी जो लिस्ट बनाया है इस लिस्ट में उसको राइट डाउन कर लीजिए. डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स इज माइनस 10x एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स इज कॉट एक्स. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. y is equal to e raised to x cube. y is equal to e raised to x cube. So given function is of the form e raised to bracket, and now you know derivative of e raised to bracket is e raised to bracket and derivative of bracket again. So differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of e raised to bracket is e raised to bracket and derivative of x cube again. So answer will be e raised to x cube. Now differentiation, derivative of x cube is 3x square. So your answer will be 3 times x square into e raised to x cube, right? Then question number 5, वो तो कर दिया ना हमने. Okay, so question number 6. Question number 6. y is equal to e raised to x plus e raised to x square plus dash 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 given e raised to x raised to 5. This is the given, right? That means in middle term there is e raised to x cube, e raised to x4 are also there. So your y is e raised to x plus e raised to x square plus e raised to x cube plus e raised to x raised to 4 plus e to the power x raised to 5. This is a given function, right? Now you know derivative of e raised to x is e raised to x. Now derivative of e raised to x square, similarly as this example, e raised to bracket, that is e raised to x cube, and derivative of x cube is 3x square, you know, right? So differentiating with respect to x, so differentiating with respect to x, what we get? dy by dx is equal to e raised to x, derivative of e raised to x is e raised to x, derivative of e raised to x square is e raised to x square into d dx of bracket, that is e raised to bracket is x square, plus
डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्यूब दैट इज ई रेज टू ब्रैकेट इज ई रेज टू ब्रैकेट इंटू डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट दैट इज एक्स क्यूब प्लस e raised to x raised to 4 that is e raised to bracket is e raised to x raised to 4 into d dx of x raised to 4 and plus e to the power x raised to 5 so e raised to x raised to 5 as it is and d dx of x raised to 5 d dx of x raised to 5 right so this is अब दिखाई देता है ना आपको सॉरी e raised to x plus e raised to x square. Now derivative of x square is twice x plus e raised to x cube. So this is e raised to x cube, right? And derivative of x cube is 3x square. ये तो पता है ना आपको? Plus e raised to x raised to 4 and derivative of x raised to 4 is 4x cube plus e raised to x raised to 5 and derivative of x raised to 5 is 5 times x raised to 4 right so this is your answer so इसको रीअरेंज करके लिखना है तो लिख सकते हैं तो e raised to x plus twice x e raised to x square plus 3 times x square into e to the power x cube plus 4x cube into e to the power x raised to 4 plus 5 times x raised to 4 into e raised to x raised to 5. So this is your answer, right? Now next question is question number 7, right? Next is question number 7. So question number 7, given that y is equal to जो आपको दिया गया है वो ये है कि y is equal to square root of e raised to root x where x is greater than 0 राइट दिखाई देता है ना आपको थोड़ा पेज आगे कर लेते हैं दिखाई देता है ना अभी तो ओके फाइन सो क्वेश्चन नंबर 7 y is equal to root e raised to root x आपको पता है डी डी एक्स ऑफ root x डी डी एक्स ऑफ root x is 1/2 times root x ये आपको डेरिवेटिव इसका पता है डी डी एक्स ऑफ root x is 1/2 root x that is derivative of root bracket is 1/2 root bracket right so here differentiating respect to x so differentiating with respect to x derivative of root this is our bracket right so क्या आएगा आंसर इसका डिफ्रेंशिएटिंग करें तो dy by dx is equal to root bracket is 1/2 times root bracket that is 2 times root bracket right bracket क्या था e raised to root x into dx of e raised to root x that is bracket समझ में आया once again y is equal to root bracket डेरिवेटिव क्या आता है y इक्वल टू रूट ब्रैकेट का 1/2 रूट ब्रैकेट सो 1/2 रूट ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट इज e raised to root x so answer is 1/2 root this is your bracket and derivative of bracket again right समझ में okay fine so this is 1/2 times under root e raised to root x as it is now e raised to x instead of x it's root x so again applying chain rule so derivative of e raised to x is e raised to x and d dx of root x आई बात समझ में e raised to ब्रैकेट का डेरिवेटिव e raised to ब्रैकेट और डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट अगेन राइट नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दैट इज आवर फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स सो आंसर क्या आएगा तो आंसर विल बी 1/2 टाइम्स e raised to root x into e raised to root x into e raised to root x और derivative of root x is 1/2 times root x 1/2 times root x so 2 into 2 4 right 2 into 2 4 और इसको जो हमें लिखना है तो हमें
ये जो हमारा गिवन है एग्जाम्पल, इससे हम y भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि आंसर में ऐसा दिया होगा y, तो क्या होगा e रेज टू रूट x, राइट, 2 इंटू टू दैट इज 4, 2 इंटू टू दैट इज 4, दिस इज y, so 4y into root x, so this is your final answer. Next question, question number 8. Question number 8 is given y is equal to log of log x, log of log x, where x is greater than 1. This is given. Now you know derivative of log bracket is derivative of log bracket ddx of log x, that is 1 upon x. So derivative of log bracket is 1 upon bracket, right? So bracket is here log x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 upon log x, एंड ब्रैकेट का अगेन दैट इज ddx ऑफ log x करेंगे. तो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal to, once again, log bracket 1 upon bracket, that is log x, and derivative of log x, right? Now derivative of log x is 1 upon x, because base is nothing, that is we are considering as a natural base, so this is 1 upon log x into 1 upon x. So this is your answer. Then next question is question number 9. So question number 9, पेज को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, right? So question number 9. Question number 9 is y is equal to cos x whole upon log x, where x is greater than 0, where x is greater than 0. So this is of the form u upon v, and you know derivative of u upon v, right? So differentiating with respect to x, so differentiating with respect to x, derivative of this, that is dy by dx is equal to, you know, denominator square, that is log x whole square, right? Denominator as it is, that is log x as it is, derivative of ddx of numerator, that is cos x, that is cos x, minus numerator as it is, that is cos x as it is, right? And derivative of denominator, that is log x, right? Got it? U upon v, v into ddx of u minus u ddx of v upon v square. So क्या होगा आंसर? So answer will be log x, derivative of cos x is minus sin x, minus sin x, right? Minus cos x as it is, derivative of log x is 1 upon x whole upon log x whole square, log x whole square, right? So taking LCM, what we get, ये x यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस ये है तो माइनस x log x इंटू साइन x, ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है, राइट? माइनस कॉस x होल अपॉन x इंटू लॉग x होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? वेयर x ग्रेटर देन 0 है तो डिनोमिनेटर में x हम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया है y इज इक्वल टू कॉस log x प्लस e रेज टू x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ये दिया है, राइट? तो क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट, अप्लाइंग चेन रूल, यू नो, नाउ यू आर मास्टर फॉर चेन रूल ऑल्सो, आपको पता है चेन रूल कैसे अप्लाई करना है और आपको मास्टर भी आ गई है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, cos bracket is minus sin bracket, that is log x plus e raised to x
इंटू डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, राइट, ये उसका डेरिवेटिव आ गया. नाउ माइनस साइन log x plus e raised to x as it is. Now derivative of log x plus e raised to x. Derivative of log x is 1 upon x and derivative of e raised to x is e raised to x. So this is your final answer. Students, हमने अभी तक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो एग्जांपल था न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक में दिया था वो सब कर लिया. हमने एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट कर ली, मगर इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो है वो और लॉगरिथमिक फंक्शन का एप्लीकेशन वाला जो एग्जांपल्स है वो मिसलेनियस में दिया है, वो भी हम यहाँ कर लेते, तो ये टाइप यहाँ पे पूरी हो जाती है, राइट. तो एग्जांपल नंबर 44 उसका फर्स्ट है क्वेश्चन जो है ई रेज टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स, राइट. सो डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of this e raised to sec square x, that is e raised to bracket. So derivative of e raised to bracket is e raised to bracket, that is sec square x, and derivative of bracket again, that is sec square x. Derivative bracket is sec square x plus 3 कांस्टेंट कॉस इनवर्स एक्स. आपको पता है अभी तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, वो इसका डेरिवेटिव होता है, राइट. नाउ सेक स्क्वायर एक्स, नाउ सेक स्क्वायर एक्स इज जस्ट लाइक दिस सेक एक्स होल स्क्वायर, सेक एक्स होल स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स, राइट. दैट इज ये ब्रैकेट रेज टू एन हो जाएगा, आपको पता है ब्रैकेट रेज टू एन. सो इसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो 2 sec x होगा और डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट अगेन, दैट इज sec x अगेन आएगा, डी डी एक्स ऑफ sec x अगेन आएगा, वो आपको पता है, राइट. तो sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, तो e रेज टू sec इनवर्स x एज इट इज, राइट. नाउ sec स्क्वायर एक्स दैट इज 2 sec x, 2 sec x, सो 2 sec x आएगा इसका डेरिवेटिव और डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट दैट इज सेक एक्स. आई बात समझ में? इसे ब्रैकेट रेज टू एन, 2 ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, सो सेक स्क्वायर एक्स का 2 sec x और डेरिवेटिव ब्रैकेट सेक एक्स इज अगेन, राइट, माइनस 3 टाइम्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. नाउ सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो दिस इज ई रेज टू sec square x into 2 sec x और derivative of sec x is sec x into 10x, derivative of sec x is sec x into 10x minus 3 upon under root 1 minus x square as it is, right. तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या होगा, दिस इज 2 comes outside e raised to sec square x और ये क्या हो जाएगा sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x हो जाएगा और 10x, सो दिस इज 10x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x. क्या दिया है, कॉस इनवर्स साइन x. आपको पता है आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस किए हैं. कॉस इनवर्स साइन एक्स मीन्स आउटसाइड फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स, तो इनसाइड फंक्शन भी कॉस ही चाहिए, तो ही आपका आंसर कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा, तो आंसर x आएगा. मगर ये x कब आएगा, जब ये x जो है वो इसकी रेंज में आता होगा, राइट. उसका जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है इसमें वो प्रिंसिपल ब्रांचेस में आता होगा तो ही होगा, दैट इज़ इसकी रेंज में आना चाहिए. तो अब क्या करें, ये तो साइन है, राइट. तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इधर ये जो कॉस है उसको हम कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस एक्स में चेंज कर सकते हैं. तो क्या करें, बोलो, आप बोले वैसा करें. हाँ, π/2 माइनस साइन में चेंज कर देते हैं. ओके, सो दिस इज π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, राइट. सो नाउ
this is sin inverse sin x is x. So this is your function is pi by 2 minus x. So this is your y. Now differentiating with respect to x. So differentiating with respect to x, right? जब आप डिफ्रेंसिएशन के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि आपको जितना भी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है पहले सिंप्लीफिकेशन कीजिए, बाद में उसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आपका आंसर आ जाएंगे. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डिफ्रेंसिएशन करते तो ये आपको बात याद ही रखनी है कि उसका पहले सिंप्लीफाई कर दो, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके इतना सिंप्लीफाई करो और बाद में आंसर उसका डेरिवेटिव निकालो तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स is equal to pi by 2 is constant and derivative of x is 1 and outside function sign is minus, so answer is minus 1, right? So this is your answer. इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसा था, थर्ड y is equal to tan inverse sin x upon 1 plus cos x sin x upon 1 plus cos x in given condition cos x is not equal to -1. cos -1 नहीं होता क्योंकि -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये tan इनवर्स जो है वो डिफाइंड नहीं होगा. तो कंडीशन दिया है cos x is not equal to -1. ये एग्जाम्पल भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई, राइट? तो उनका सिंप्लीफिकेशन आपको पता है x बाई 2 आता था. तो यदि इसका आंसर जो x बाई 2 आता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जो आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए, वही सबका यहाँ पे फिर से सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव हमें निकालना है, राइट? तो क्या करते थे हम, साइन एक्स का फॉर्मूला लिखते थे. आपको पता है साइन 2 थीटा की फॉर्मूला क्या आती है, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला दैट इज 2 साइन थीटा इंटू cos theta, right? This is the formula for sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta, right? और 1 plus cos 2 theta जो है वो आपको फॉर्मूला पता है 2 cos square theta होता है, 2 cos square theta होता है. मगर यहाँ पे जो दिया है वो एंगल डबल नहीं है, सिंगल एंगल है, तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं पहले. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x क्या होगा, 2 साइन एक्स, जो 2 है तो वो सिंगल होता है, थीटा होता है, तो ये x है तो इसका क्या हो जाएगा, x बाई 2. सो दिस इज 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होगा, होल अपॉन. नाउ दिस इज 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस 2 थीटा देन 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, राइट? नाउ दिस 2 विल कट, कॉस कट, सो रिमेनिंग इज 10 x बाई 2. सो y विल बी, दिखाई देता है ना आपको, y विल बी tan इनवर्स 10 x बाई 2. दैट इज योर आंसर, राइट? नाउ हियर x बिलोंग्स टू, x इज given minus pi to pi because x is not equal to -1 cos x is given. So minus pi less than x less than pi, right? और हमारे पास x क्या है, x by 2. So dividing by 2 what we get, minus pi by 2 less than, this is minus x by 2 less than pi by 2 होगा, right? That is जो x by 2 है वो tan इनवर्स की जो रेंज है, tan इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 में ही आता है. तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर विल बी y इज इक्वल टू x बाई 2. एंड अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. देखो हमने आगे ही डिसाइड कर लिया था, हमें आंसर पता था x बाई 2 आने वाला है, तो इसका नाउ डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपको पता है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2. नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो गिवन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज़ टू x प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस 4 रेज़ टू x. दिस इज द गिवन, राइट? मैंने आपको बताया कि डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप जितना भी सिंप्लीफिकेशन कर सके उतना कर दीजिए. तो सिंप्लीफाइंग दिस, अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल रूल, तो वो क्या होगा, दिस बिकम्स साइन इनवर्स 2 रेज़ टू x इंटू 2 होगा, राइट? होल अपॉन 1 प्लस, दिस इज 4 रेज़ टू x,
Now 4 raised to x, that is this is 2 square raised to x, राइट। और आपको पता है कि ये पावर हम चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैं 4 raised to x को क्या लिखूंगा, आई एम राइटिंग 2x होल स्क्वायर, राइट। पता चला सिंप्लीफिकेशन में, है ना। ओके, सो नाउ ये साइन इनवर्स है तो इनसाइड भी साइन का ही फॉर्मूला होना चाहिए। तो याद करेंगे तो साइन का फॉर्मूला रिकॉल दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज हमको 2 raised to x की जगह पे क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 2 raised to x is equal to tan थीटा, सो लेट 2 raised to x is equal to tan थीटा, क्योंकि 2 raised to x is equal to tan होगा तो भी हमारी ये फॉर्मूला बनेगी sin 2 थीटा की, राइट। सो हम एज्यूम करते हैं 2 raised to x is equal to tan थीटा, सो दिस implies थीटा is equal to tan इनवर्स 2 raised to x हो जाएगा। और हमारा थीटा जो है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है, सो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज in here y, so y becomes y is equal to sin inverse, right, 2 raised to x is tan theta, so this is 2 tan theta, हमने यही फॉर्मूला तो एडजस्ट की है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2 tan theta अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड आंसर ऑफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 theta that you know, right। नाउ थीटा आपके पास जो दिया है, तो ये जो है वो हमारे जो डोमेन है इसमें डिफाइन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज tan इनवर्स 2 raised to x, सॉरी मैं 2 लिखना भूल गया तो मैं 2 लिखता, 2 tan इनवर्स 2 raised to x। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। नाउ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx, राइट, 2 as it is, so 2 as it is, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट इज 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 2 raised to x square into d by dx of bracket that is 2 raised to x, right। So this is 2 upon 1 plus 2 raised to x whole square, that is 4 raised to x, and derivative of 2 raised to x is 2 raised to x into log 2 base e, ये आपको पता है ना आपको, राइट। सो आंसर क्या आया, इसका दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम उसको एडिशन में ले लेंगे, तो 2 raised to बेस सेम पावर की एडिशन 2 raised to x plus 1, 2 raised to x plus 1 into log 2 होल अपॉन 1 प्लस 4 raised to x। तो आपको ये बात समझ में आई ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये मैंने 2 थीटा डायरेक्ट क्यों लिख दिया, इसकी रेंज में आता है कि नहीं आता है, मगर क्या है ये साइन इनवर्स जो है वो क्या था, साइन इनवर्स एग्जाम्पल नहीं दिखाई देता है ना, ओके वेट अ मिनट, साइन इनवर्स 2 raised to x plus 1 अपॉन 1 plus 4 raised to x दिया था। ये जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है कब, तो कि वो -1 to 1 में होना चाहिए, उसके डोमेन जो था उसमें होना चाहिए। तो 1 इज लेस और इक्वल टू 2 raised to x plus 1 अपॉन 1 plus 4 raised to x लेस और इक्वल टू 1 में होना चाहिए, राइट। और ये जो फंक्शन है, राइट, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज लेस और इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 raised to x plus 1 इज लेस और इक्वल टू 1 plus 4 raised to x होना चाहिए, और दिस इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर ऑल x, right, that's why we are writing here directly, that is here sin inverse sin 2 theta is 2 theta। now is it clear, okay, thank you। now इसके रिलेटेड ही लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सब जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, और आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्क भी कर देना कि ये एग्जाम्पल हो गए हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x into root x, and condition is given 0 is less or equal to x is less or equal to 1. Sin inverse x root x, 0 is less or equal to x is less or equal to 1 is given. So now differentiating with respect to x, इसका x के सफिक्स में हम विकलन करते हैं तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ब्रैकेट, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने याद कर लिया, मैंने बोला साइन इनवर्स ब्रैकेट क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ब्रैकेट है तो क्या होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स ब्रैकेट इज 1/√1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर एंड डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। सो आंसर विल बी dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, 1/√1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है x इंटू रूट एक्स होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ x इंटू रूट एक्स, राइट। समझ में आई ना बात, ओके फाइन। नाउ दिस इज 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा और ये एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। सो ये एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, तो दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये डी एक्स ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स क्या करते हैं बच्चे लोग, आप लोग पता है आपको, आप एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं एग्जाम में, आप लोग ऐसा करते हैं, ये करना नहीं है, अगर दिखाता हूँ आप लोग क्या करते हैं, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, ये आंसर आएगा आपका, आप ऐसा बोलते हैं, बराबर। मगर ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। देखो ये एक्स है, ये रूट एक्स है, तो क्या होगा, ये एक्स और एक रूट एक्स है, सो एक्स इंटू एक्स रेज टू हाफ होगा, दैट इज बेस बोथ सेम, सम ऑफ द पावर, दैट इज दिस इज एक्स रेज टू, क्या हो जाएगा वो एक्स रेज टू 1 + 1/2 3/2 होगा, राइट। सो हमें डिफ्रेंसिएशन किस तरह का निकालना है, एक्स रेज टू 3/2 का। सो दिस इज डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2। मैंने आपको बोला था सिंप्लीफाई करो पहले, बाद में ही आप उसका डेरिवेटिव निकालो, राइट। सो जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, सो वी गेट एक्स रेज टू 3/2। सो नाउ दिस इज 1/, दिखाई देता है ना आपको, चलो थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, अंडर रूट दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n, that is bracket raised to n is n bracket raised to n minus 1, right, and derivative of x is 1 because this is the standard function x raised to n, right। तो ये क्या हो गया, 3/2 minus 1 is 1/2, right। तो क्या होगा, this is 3/2 constant, so 3/2 into 1/√1 minus x cube, and this is x raised to हाफ, दैट इज रूट, ये रूट में होगा x, ये भी रूट में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू रूट एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट। पता चला आपको, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सब, राइट। y इज इक्वल टू, आपको नहीं दिखाई देता होगा, ओके अब दिखाई देता है ना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 होल अपॉन अंडर रूट ट्वाइस x प्लस 7 वेयर -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2, दिस इज द कंडीशन, राइट। सो गिवन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म u/v, और u/v आपको फॉर्मूला पता है, फिर भी एक बार वापस लिखते हैं। सो डी एक्स ऑफ u/v इज इक्वल टू, आपको पता है डिनोमिनेटर स्क्वायर v स्क्वायर, राइट,
दिखाई देता है ना? ओके, सो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारी, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो इसको जो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो, दिस इज यू, दिस इज v, राइट? सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट? बाद में डिनोमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, पहले डिनोमीटर एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या होगा, रूट ट्वाइस एक्स प्लस 7। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जब फंक्शन दिए होते हैं ना, तो आपको जरा आहिस्ता केयरफुली लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, राइट? सो डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, that is cos inverse x by 2 as it is, or derivative of denominator, that is root twice x plus 7, twice x plus 7। थोड़ा ये फॉर्मूला के साथ एक्सीडेंट हो गया है, चलेगा, समझ में आएगा आपको। होल अपॉन रूट ट्वाइस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, दैट इज रूट ट्वाइस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, राइट? तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो रूट ट्वाइस एक्स प्लस 7 एज इट इज, सो रूट ट्वाइस एक्स प्लस 7 एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट, आंसर इज -1 होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज एक्स बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, दैट इज एक्स बाई 2 होगा, दैट इज एक्स बाई 2। समझ में आई ना बात? ओके फाइन। नाउ माइनस, दिस इज माइनस, थोड़ा बड़ा लिख देना, कॉस इनवर्स, पता चलेगा ना आपको कि यहाँ से टर्म चेंज हो गया, एक्स बाई 2। नाउ यू नो डेरिवेटिव ऑफ रूट ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ रूट ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट में है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ब्रैकेट इज 1 अपॉन 2 रूट ब्रैकेट, सो 1 अपॉन 2 रूट ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस 7, और डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 7, बिकॉज हमने चेन रूल अप्लाई किया। क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया, पता चला? हाँ, कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 एज इट इज, रूट ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ब्रैकेट, और ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव, ओके, होल अपॉन। ऐसा जो होता है ना लॉन्ग टर्म, तो इसमें डिनोमीटर ऐसा लिखना है, इक्वल टू लिखना है तो बाद में लिखने का ना, उसका स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस 7 हो गया, राइट? आपको दिखाई देता है ना? थोड़ा पेज आगे कर लेते हैं, हाँ, एक मिनट, थोड़ा पेज को आगे कर लेते हैं। हाँ, बोर्ड होता तो अच्छा रहता, मगर क्या करें, जो करंट सिचुएशन है इसमें ही हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ रहे वो बहुत ही अच्छा है। ओके फाइन। नाउ दिस इज माइनस एंड दिस इज स्क्वायर रूट, सो क्या होगा, तो ये होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 7, माइनस बाहर है स्क्वायर रूट की, राइट? इसका एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, उसका स्क्वायर रूट 2 होगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। गॉट इट? वेरी गुड। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई 2, इसमें 1 अपॉन 2 तो कॉन्स्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, सो आंसर क्या आएगा, हाफ ही आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 जो है वो एज इट इज है, 1 अपॉन 2 रूट ट्वाइस एक्स प्लस 7 जो है वो भी एज इट इज है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, सो आंसर क्या आएगा 2, और प्लस 7 का 0 होता है तो वो हम लिखते नहीं है, राइट? ट्रैफिक ज़्यादा नहीं करना है इसलिए नहीं लिखेंगे 0 को, सो दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस 7 हो जाएगा, राइट? और इक्वल टू तो आएगा ही इधर। अब क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, कि एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे बोलो, आप जो बोले वो करते हैं हम लोग।
तो एलसीएम लेने से अच्छा रहेगा जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया वही हम डिराइव करने की ट्राई करें। तो टेक्स्ट बुक में जो है वो आपको आंसर दिया है उसको बाइफरकेट करके, तो क्या आंसर आएगा, इसके अपॉन ये आएगा, तो दिस इज रूट एक्स, तो रूट एक्स अपॉन ये एक्स हो गया, राइट। सो रूट एक्स अपॉन एक्स जो है, रूट एक्स अपॉन एक्स जो है वो आंसर क्या आता है, 1 अपॉन रूट एक्स आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन रूट एक्स। ये माइनस है, ये 2 तक कट हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका ये रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होगा रूट एक्स, सो ट्वाइस एक्स प्लस 7 होगा, राइट, ट्वाइस एक्स प्लस 7 होगा। नाउ दिस इज माइनस, राइट, सो दिस इज अगेन माइनस cos इनवर्स x बाई 2, सो cos इनवर्स x बाई 2, ये 2 भी कट हो गया, राइट। तो ये रूट एक्स आया और ये x, सो x इंटू रूट एक्स दैट इज x रेज टू हाफ पावर। सो इसका जो एडिशन करेंगे तो क्या होगा, उसका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, x रेज टू 3/2 होगा। सो दिस इज ट्वाइस एक्स प्लस 7 रेज टू 3/2 होगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें से आप चाहे तो माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, ये दिया है। आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इफ x लाइज बिटवीन -1 to 1 दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज टू -1 to 1 देन साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा। नाउ यू नो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, सो y इज इक्वल टू π/2। दिखा कमाल, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या कमाल हो जाता है। और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, सो dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाता है, dy/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नाउ ये टाइप का लास्ट क्वेश्चन मिसलेनियस में से भी वो है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। आपको पता है ये भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था सेकेंड चैप्टर में, और इसका आंसर भी क्या आता है x/2, राइट। तो वही आंसर आएगा, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, ओके। सो इसका आंसर 1/2 है। सो हियर व्हाट इज गिवन, हियर गिवन दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2, राइट। इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं। हाँ, आपको ऐसा क्वेश्चन राइज होगा क्यों डिवाइड बाई 2 करना है इसको, तो आपको पता है 1 प्लस साइन एक्स का हम क्या करते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर लिखते हैं, तो बाई 2 आएगा x/2 एंगल जो है वो, तो x/2 आएगा, इसलिए हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, राइट। सो 0 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/4, right, that means your x/2 theta, that is theta lies between 0 to π/2, theta is x/2, in 0 to π/4 you know cos x/2 is greater than sin x/2, पता है ना आपको ये कैसे होता है, वो मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सपोज सी मैं आपको बता देता हूँ वापस एक बार क्या होता है। आपको साइन और कॉस का ग्राफ तो पता है, साइन 0 होता है, साइन π/2, राइट, थोड़ा दूर से ले लेते हैं, π/2, राइट। साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, और साइन पाई जो है वो 0 होता है। तो साइन का ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो साइन का ग्राफ ऐसा आता है, ये आपको पता है, राइट। और कॉस 0 1 होता है, और कॉस π/2 0, तो ये जो है वो आपके पास कॉस का ग्राफ आता है, राइट। ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, ये
कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है, राइट। नाउ सी दिस इज योर पाई बाई 4, this is your pi by 4, right? So in pi by 4 this is cos, so cos is greater than sin, and pi by 4 to pi by 2 में ये आपका साइन हो गया तो साइन बड़ा हो गया और कॉस लेस देन हो गया। तो वो ही मैंने बताया था आपको कि 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2 है तो क्या होगा कॉस, सॉरी 0 टू पाई बाई 4 है तो 0 टू पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होगा तो कॉस इज ग्रेटर देन साइन एक्स, एंड पाई बाई 2 टू पाई में कौन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा। तो वो आपको पता है साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स होता है। मगर यहाँ एंगल थीटा की जगह पे क्या था एक्स बाई 2, तो हमने एक्स बाई 2 लिख दिया तो एंगल ही चेंज हुआ। तो आपको ये पता है और ये आपको याद भी रखना है तो बहुत ही काम में आएगा, ये वेरी यूजफुल फॉर्मूला है, राइट। सो ना अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, राइट। अब तो ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा ग्राफ का कट हो जाएगा तो भी चलेगा, हम लिखेंगे वो दिखना है आपको। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये भी पता है आपको कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता नहीं है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो हम क्या लिखते हैं इसको कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिखते हैं। मगर ये दोनों प्लस है और एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 तो हमारा कहाँ पे है 0 टू पाई बाई 4 में, तो दोनों प्लस है तो उसका एडिशन तो प्लस ही रहेगा। तो मॉड्यूलस रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। आपको पता है मॉड्यूलस का डेफिनेशन भी कि आंसर एक्स आएगा जो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स आता है जो एक्स लेस देन 0 है। तो इसका तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो ग्रेटर देन 0, सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज एक्स, दैट इज साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, राइट। नाउ रूट 1 माइनस एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी। सो आंसर इज cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 बोथ लिख सकते हैं मगर मॉड्यूलस है। नाउ 0 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 मीन्स कौन बड़ा है, हमारे पास कॉस बड़ा है यहाँ पे, तो कॉस बड़ा है तो कॉस पहले आएगा, तो इसका आंसर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा, क्योंकि ये हमने दिखाई दिया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, और ग्राफ से भी आप समझ सकते हो, राइट। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन आया वो हम जो एग्जाम्पल दिया उसमें सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिखाई देगा ना आपको। मुझे ऊपर का भी समझिए ना, ओके थोड़ा कट हो गया कोई बात नहीं। रूट 1 प्लस साइन एक्स, रूट 1 प्लस साइन एक्स का आंसर क्या था कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 आया, प्लस ऐसा बड़ा साइन लिखने का तो पता चलेगा कि यह सेपरेट होता है टर्म, राइट। प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका आंसर क्या आया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आया। नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, तो वैसे ही डायरेक्ट ही लिख देते हैं, राइट। तो क्या होगा कॉस एक्स बाई 2, राइट, प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये माइनस, right, so cos x by 2 और this minus minus become plus, so this is plus sin x by 2, तो आपके पास ये आ जाता है, right। अब हमें ज़रूरत नहीं है सम की। now this sin sin cut, so this is 2 cos x by 2, right, so क्या होगा cot inverse 2 times cos x by 2 whole upon cos cos cancel, that is 2 sin x by 2, so 2 sin x by 2 हो गया। now 2 again cut, so answer will be cot inverse cot x by 2, cot inverse cot x by 2 हो गया। हमने ये सॉल्व किया ही था, राइट, आपको पता ही है। now इसका आंसर x by 2 आएगा if x by 2 belongs to the range of this cot inverse। now what is x by 2, x by 2 belongs to 0 to x by 2 belongs to 0 to pi by 4, so इसकी रेंज में आता ही है। तो बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट all thetas belonging in first quadrant lies in the required range, so answer of this is x by 2 because 0 is less than x by 2 is less than pi by 4, so ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया y, राइट। देखो कितना इजी डेरिवेटिव है,
आपको सिंप्लीफिकेशन ही आना चाहिए, डेरिवेटिव में कुछ करना नहीं है, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, so differentiating with respect to x, what we get, dy by dx is equal to half, because derivative of x is 1, derivative of x is 1, so this is your final answer। तो आई होप आपको सब पता चला होगा, और आप ये जो सब एग्जाम्पल्स है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर 8 गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x, राइट। तो दिस इज cos ब्रैकेट, so you know derivative of cos bracket is minus sin bracket, so differentiating with respect to x, derivative of y is dy by dx. Now derivative of cos bracket is minus sin bracket, so this is a cos x plus b sin x, and applying chain rule, so d dx of bracket again, that is a cos x plus b sin x, right। now this is minus sin a cos x plus b sin x, a as it is, derivative of cos x is minus sin x plus b is constant as it is, derivative of sin x is cos x, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। इसमें से यदि माइनस कॉमन लेना है तो हम ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भी चलेगा। तो आंसर विल बी b cos x माइनस a sin x, और ये जो माइनस है वो माइनस sin a cos x प्लस b sin x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।